بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے دوست اب آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دوستو، موضوع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ مل گئی ہے، نوٹیفیکیشن بھی مل گیا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان ایک شیخ صاحب بھی شامل حال رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی موجودگی کے اندر گفتگو کریں۔ شیخ صاحب اہلاً و سہلاً۔ تھینک یو، بہت شکریہ عامر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ یو ویلکم۔ شیخ صاحب، میری آواز آن ٹائم آ رہی ہے؟ اگر تو آپ نے مجھے ابھی سن لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میرے نہیں، اس کا مطلب ہے تھوڑی لفظ ڈیلے ہے۔ ڈیلے سے یہ چیز ٹھیک ظاہر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی میرے پاس مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ ایشو، کیونکہ میرے پاس شو کرے گا وہ اگر نیٹ کی طرف سے ایشو کرے گا۔ اینی ویز، ہم آج کی جو سٹریم ہے دوستو وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ ہم کیری آن کرتے ہیں اور آج کافی کچھ ہے ہمارے پاس شیئر کرنے کے لیے، اور موضوع جو ہے اس حوالے سے میں بنیادی طور پر دو تمہیدی نکات جو ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے۔ تو یہ تمہیدی دو نکات ہیں جو آپ اگر سمجھ لیں گے تو آگے جو ہونے والی گفتگو ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز دوستو یہ ہے کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں اس کو مذہبی یا ریلیجس ایسپیکٹ کے طور پر یا تھیسٹک ایسپیکٹ کے طور پر ہم بیان نہیں کریں گے، یعنی ایک مذہبی پہلو، دینی پہلو، روحانی پہلو، الہی پہلو، تھیسٹک پہلو اس میں نہیں ہوگا۔ آج کا موضوع خالصتاً فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں ہم عدم اور وجود پر بحث کریں گے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آج مذہب اور دین کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ آج جو قرآن کی آیات اور احادیث کا استدلال پیش نہیں کیا جائے گا، مذہبی روایات اور تاریخ سے کسی قسم کا کوئی استدلال اور استنباط آج کے موضوع کے حوالے سے نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ملحدین، چونکہ یہ موضوع ملحدین سے متعلق ہے، ملحدین جو اس سٹریم کو دیکھیں گے ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے دلائل، میرے استدلال اور میرے ریفرنسز کی طرف توجہ کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ایک مذہبی بندہ ہے یا ایک تھیسٹک آدمی ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ہے، اس لیے اس کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اصول اور دلائل کی بنیاد کے اوپر آپ نے چیزوں کو پرکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں رکھنے لگا ہوں۔ یہ دو بنیادی باتیں تھیں، ایک مومنین سے تھیں اور ایک ملحدین سے تھی۔ یہ میری دو تمہیدی باتیں اس حوالے سے ہو گئیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اب موضوع جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروں پر میں نے اس کو بینر کے طور پر لگا دیا ہے، عدم اور وجود ایک پہیلی۔ عدم اور وجود ایک پہیلی۔ یہ موضوع جس قدر نیا ہے اسی قدر پرانا بھی ہے۔ اس موضوع میں جس قدر جدت، جس قدر ارتقاء اور جس قدر ترقی افکار میں، نظریات میں، آراء میں، اوپینینز میں، آرگیومنٹس کے اندر ہو رہی ہے، اسی قدر اس کے اندر قدامت بھی ہے۔ یعنی جیسے جیسے جدید علم کی روشنی کے اندر عدم اور وجود، نتھنگنس اینڈ بینگ کے اوپر بات ہوتی جاتی ہے، اس قدر اس کا تعلق ماضی کے فلسفے کے ساتھ اتنا ہی زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا جائزہ اب ہم لیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ تو اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ اس سٹریم کو لائک بھی کریں جناب، اس کو شیئر بھی کر دیں اپنے گروپس کے اندر، اور آپ سارے کام چھوڑ کر توجہ کے ساتھ آج کی سٹریم کو سنیے گا۔ جو لوگ لائیو سن سکتے ہیں اس کو سنیں، جو بعد میں سننا چاہتے ہیں بعد میں سنیں۔ شیخ صاحب، میں جب سکرین شیئر کروں تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ سکرین شیئر ہو گئی ہے تاکہ میں باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کر سکوں۔ جی بالکل ہو گئی، آپ کی پہلی کلک پہ ہی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہو گئی، الحمدللہ۔ اچھا، جی دوستو، شیخ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی۔ ٹھیک ہو گیا، میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع نتھنگنس اور بینگ کے اوپر ہے۔
जैसा कि मैं तमहीदी नुक्ते नंबर 1 के अंदर बयान कर चुका कि आज की गुफ्तगू का सारा मरकज और महवर जो है वो फिलॉसफी और साइंस रहेगा, इसमें रिलीजियस या थिस्टिक पहलू नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जब हम इल्हाद को रद्द करने के लिए, इल्हाद पर गुफ्तगू और तबसरा करने के लिए जब हम साइंस के, फलसफा के इन उसूली मबाहिस और उसूली अनावीन और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे तो वहां मजहब का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए उसूलन। उसकी वजह यह है कि जो आपका मुखातिब है, जो सामीन है, आपकी ऑडियंस है, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो मुल्हिदीन हैं, वो आपके दीन को, आपके कुरान को, आपकी हदीस को नहीं मानते। इसलिए जरूरी है कि आप फलसफे और साइंस की रोशनी में अदम और वजूद की पेचीदा बहसों को आसान तरीके से आम फहम अंदाज के अंदर सुलझाकर अवाम के सामने पेश करते हैं, जो आज हम करेंगे। ठीक हो गया जी? तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन है जो हम आपके सामने पेश करेंगे चंद मुख्तलिफ पॉइंट्स के हवाले से। तो आए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर हम जायजा लेते हैं कि नथिंगनेस जो है ये फलसफे और साइंस की रोशनी में कहते किसे हैं। फलसफे में अदम किसे कहते हैं और साइंस में किसे कहते हैं। सबसे पहले यह समझ लें कि फलसफे में जो अदम है इसकी किसी किस्म की भी कोई कंप्लीट, अप्रोप्रिएट और सिंपल डेफिनेशन नहीं की गई, ना अदम की ना वजूद की। बहस दर बहस है, पेचीदगियां हैं, गुत्थियां हैं, गोरख धंधाएं हैं, और एक गुंजल जाल है, एक वेब है और नेट है, और एक ट्विस्टिंग और आप ये समझें कि बम्पी रोड है फलसफे के अंदर, जो अदम और वजूद के ऊपर बहस करती हुई दिखाई देती है। तो पहला नुक्ता आपने ये समझना है कि फलसफे में अदम और वजूद पर कोई मुसद्दिका, मुत्तफिका, मुत्तहिदा और आप ये समझ लें कि मुसब्बता, साबित शुदा कोई डेफिनेशन मौजूद, कोई तारीफ मौजूद नहीं है। इसकी मुख्तलिफ जहतें सामने आती हैं जब आप अदम के ऊपर बात करते हैं कि अदम है क्या, नथिंगनेस है क्या। इसको बाज फलसफियों ने इस तरीके से बयान किया है कि खाली स्पेस, जो खला जो होता है, खला, चाहे ऐसा खला जो मादा के साथ मुतमस्सिक है, मुंसलिक है, उसके साथ मुताबिकत रखता है। मिसाल के तौर पर अभी आपको दुनिया के अंदर स्पेस नजर आता है, यानी आप एक कमरे में बैठे हैं, इस कमरे के अंदर जिन जगहों पर टेबल, कुर्सी, पंखा, खिड़की, आपके कपड़े, अलमारियां, जो चीजें पड़ी हैं, इन्होंने तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये नथिंगनेस न रहा। मगर जो जगह खाली रह गई हैं वो नथिंगनेस हैं, वो अदम का शिकार है। क्यों? क्योंकि वहां कोई चीज नहीं है, वो खला है। ये फलसफे के यहां बुनियादी तौर पर, आम फहम तौर पर समझा जाता था। उसको इस तरीके से वो कहते थे कि जिस जगह पर कोई मादी शय मौजूद नहीं है, मटीरियल एंटिटी मौजूद नहीं है, उसको हम कहेंगे कि ये अदम है, नथिंगनेस है, एम्प्टी है, इसको हम अदम कहेंगे। मगर खुद फलसफे में इस हवाले से तनाज़ा पाया जाता है, इख्तलाफ पाया जाता है। उसकी वजह मैं आगे जाकर बयान करूंगा, क्योंकि फलसफे में एक अजीबो गरीब किस्म की थ्योरी पेश की। जैसा मैंने आपको कहा कि जूं जूं इंसानी शऊर और इल्म तरक्की करता जा रहा है, तो इलाहियात के मौजू पर या वजूद के मौजू पर वो बेआईनी ही उसी तरीके का दकियानुसी फलसफा बनता चला जा रहा है जो ग्रीक फिलॉसफी के अंदर, या यूनानी फिलॉसफी जिसको आमतौर पर हम कहते हैं तुरासुल यूनानी, या फिर मुस्लिम जो मुतकल्लिमीन थे, मुतशक्किकीन थे, फलासफा थे, और सफस्ताई जिनके बारे में टिपिकल टर्म इस्तेमाल होती है, उनके जमाने के अंदर जिस तरीके से कहा जाता था, वो भी वही बातें करते दिखाई दे रहे हैं जो जदीद साइंस इस वक्त कर रही है, जिसको मैं आगे जाकर स्टैब्लिश करूंगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, एक तो वो ये चीज कहते हैं वजूद और अदम आपस में मुतजाद हैं या इनका मुस्तकिल वजूद है। फलसफे के यहां ये भी बहस है। अब ये बड़ी पेचीदा बहस है। तो गोया फलसफे में अदम और वजूद पर कोई मुसद्दिका और कोई आप ये समझ लें कि ऐसी चीज नहीं पेश की गई जिसके ऊपर यूनानिमसली वो इकट्ठे हो सकते हों फलसफे के अंदर, अदम और वजूद के हवाले से। तो फलसफा
साइंस की रोशनी के मुताबिक फेल होता हुआ दिखाई देता है कि वो नथिंगनेस और बीइंग को डिफाइन कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। दिस इज द क्लेम ऑफ सो कॉल्ड एथियस्ट, जो इस वक्त सोडो साइंटिस्ट बैठे हैं, जिनको बेसिकली साइंटिसिज्म या एथिज्म एक मजहब के तौर पर जिन्होंने ले लिया हुआ है इस साइंस के उसूलों को, उनके नजदीक फलसफा फ्लॉप हो गया। और आगे चलकर मैं बयान करूंगा कि फलसफे के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की गई है, उस जुबान से कई साइंटिस्ट को क्या दुख पहुंचा है, तो उसको हम अगली आने वाली स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह पेश करेंगे। दूसरी जो दलील उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा नथिंग इज अ स्टेट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। फिलोसफी ने फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पेश किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अदम जो है ये की एक हालत है, यानी अदम एक कैफियत है, एक हालत है, एक स्टेटस है, एक स्टेट है, एक सिचुएशन है जो वजूद से पहले होता है। यानी एक हालत से जो कि अदम की हालत है, वजूद में शिफ्ट होना दूसरी हालत है। तो गोया ये समझें कि जब तक वजूद की हालत नहीं होती वो अदम की हालत होती है। ये एक पेचीदा तरीके से बहस उन्होंने कर दी। अब ये फलसफे का थोड़ा सा मैंने आपको दिया है, मैं चाहूंगा कि मैं इसको मुख्तसरन लेकर चलूं। साइंटिफिक नथिंगनेस क्या है? फिलोसफिकल नथिंगनेस जो है, इस पर मैं आने वाले थोड़े से 2-3 स्लाइड्स के अंदर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, मगर अभी आपकी तवज्जो जो है वो साइंटिफिक नथिंगनेस के ऊपर होनी चाहिए। साइंटिफिक नथिंगनेस क्या है? और ये हमारा हिस्सा वो है जिस पर मैं सबसे ज्यादा बात करूंगा, जिस पर मैं सबसे ज्यादा मुतनाज़े फी गुफ्तगू करूंगा। और उसकी वजह यह है कि हम साइंटिफिक एज के अंदर जी रहे हैं, और जिस जगह पर हम हर चीज़ को मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, सबूत और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर, रैशनल एंड लॉजिक की बुनियाद के ऊपर हम चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसी सूरत में साइंटिफिक नथिंगनेस जो है वो एक इंपॉर्टेंस और वाइटल रोल प्ले करती है अदम और वजूद को समझने के एतबार से। ठीक हो गया? साइंटिफिक नथिंगनेस को जब मैंने इस्तकराई तौर पर मुताला किया, और तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो बुनियादी तौर पर 3 किस्म की नथिंगनेस की बात करती है। 3 किस्म की नथिंगनेस। और हकीकत यह है कि जब इन तीनों किस्मों की नथिंगनेस को मैंने गौर से पढ़ा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इनमें से कोई भी खुदा के वजूद के इनकार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब मसला यह है कि हमारे जो खुदा के वजूद पर यकीन रखने वाले हैं और ये कहने वाले हैं कि कायनात खुद ब खुद नहीं बन सकती, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग इज नॉट पॉसिबल, वो ये समझ रहे होते हैं कि गोया अगर हमने ये मान लिया कि यूनिवर्स अदम से आई है, नथिंगनेस से आई है, या किसी ऐसी बात से आई है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जनाब जो है ना, ओहो हो खुदा के वजूद की जरूरत ही नहीं है। मगर मैं आपके सामने साबित करूंगा कि साइंस की इन तीनों बुनियादी तौर पर मिलती जुलती किस्मों, याद रखें मैं इंटरप्रिटेशंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नथिंगनेस की और क्वांटम फिजिक्स के तनाजुर में जब हम नथिंगनेस को देखते हैं, मैं आगे जाकर बयान करूंगा कि किस तरीके से कितनी किस्म की इंटरप्रिटेशंस, तौजीहात, तशरीहात मौजूद हैं। अच्छा, तो साइंटिफिक नथिंगनेस जो है वो 3 किस्म का है। नंबर 1, एब्सोल्यूट एब्सेंस, अदम महज और अदम मुतलक, यानी खालिसतन अदम, नथिंगनेस को कहेंगे साइंटिफिक। उसमें ना ही टाइम होगा, ना स्पेस होगा, ना मैटर होगा, एंड देयर विल बी नो फिजिकल लॉज। जो नॉन फिजिकल लॉज हैं वो वहां पर नहीं मौजूद होंगे। ये फिजिकल लॉज जिनको आप कह सकते हैं। ये एक अलग बात है कि इंसान, जितने ज्यादा फिजिसिस्ट हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अभी भी कई ऐसे फिजिक्स के लॉज हैं जो स्टैब्लिश होना, जो डिस्कवर होना बाकी हैं, जिनको अभी तक हमने स्टैब्लिश नहीं किया। वो अपनी थ्योरी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हाइपोथेसिस के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मगर ये मुमकिन है कि आने वाले कई दहाइयों के बाद एक थ्योरी कल का लॉ बन जाए। तो हकीकत यह है कि हम कोई मुक़य्यद और महदूद फिजिकल लॉज डिफाइन नहीं कर सकते। बहरहाल बाहर सूरत हमें एब्सोल्यूट एब्सेंस के अंदर यह मानना पड़ेगा कि लॉज भी नहीं थे, टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था, क्योंकि जो चीज एक वजूद मुस्तकिल रखती हो, बिजात या बगैर जात या बिला मुस्तकिल या बिल वास्ता रखती हो, उसकी एब्सेंस को हम एब्सोल्यूट एब्सेंस कहेंगे। यानी कोई ऐसी चीज जिसको शऊर के इदराक में और फहम में लाया जा सके, उसके अदम को, उसकी एब्सेंस को नथिंगनेस कहा जाएगा। साइंटिफिक नथिंगनेस एक ये भी हमें मिलती है। दूसरी साइंटिफिक नथिंगनेस हमें मिलती है एब्सेंस ऑफ फिजिकल लॉज, यानी जो कानून कुदरत है, मादा का जो फिजिक्स के लॉज हैं, उनका अदम जो है, ये साइंटिफिक नथिंगनेस है।
ایک یہ قسم ملتی ہے. اب سوال یہاں یہ اٹھے گا کہ اگر قوانین قدرت جو فزکس کے لاز ہیں ان کا عدم نتھنگنس مانا جائے تو پھر وہ سوال اٹھتا ہے کہ فزکس لاز جس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایک فورس محسوس بھی ہوتی ہے اور اس کا ایفیکٹ بھی ہم پاتے ہیں. اب وہ فورس مستقل ہے, وہ عدم سے کس طریقے پر آئی, یہ سوالات سامنے آئیں گے جو میں سوالات آخر میں رکھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے جو پیش کی گئی وہ ہے کوانٹم ویکیوم. ایسا عدم, ایسی نتھنگنس جس کو کوانٹم ویکیوم کہا جاتا ہے. کوانٹم ویکیوم کا کیا مطلب ہے؟ ویکیوم ہم کہتے ہیں خلا کو, ٹھیک ہے, ویکیوم ہم خلا کو کہتے ہیں. تو کوانٹم ویکیوم کا مطلب کیا ہے کہ خالی خلا نہیں. سائنٹیفک نتھنگنس کے اندر, کوانٹم ویکیوم کے اندر متعدد اجزاء اور متعدد چیزیں ہوتی ہیں, متعدد پارٹیکلز ہوتے ہیں, متعدد قسم کی انرجیز اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ بلا واسطہ ڈائریکٹ آبزرویشن کے اندر نہیں لا سکتے, مگر پھر بھی وہ اپنے وجود کے اثرات مرتب کرتی ہیں. سائنس کی روشنی کے اندر کہا جاتا ہے اس کو کوانٹم ویکیوم. تو کوانٹم ویکیوم کا مطلب کیا ہوا کہ عدم نہیں, یعنی وہ ساری چیزیں موجود نہ ہوں مگر پھر بھی انفارمیشن اور ورچوئل پارٹیکلز ہوں گے. اب ورچوئل پارٹیکلز کیا ہیں یا انفارمیشن کیا ہے اس کو ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اب یہاں تک کی بحث سے ہمارے سامنے نتیجہ نکلا ہے, وہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ فلسفہ اور نہ سائنس عدم اور وجود کے اعتبار سے کسی متفقہ تعریف کے اوپر کھڑے ہیں. عام طور پر یہ ملحدین کی طرف سے تاثر دیا جاتا ہے کہ فلسفہ تو ناکام رہا, مذہب تو ناکام رہا, لیکن سائنس کامیاب ہوئی کہ اس نے یہ جواب دے دیا. اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ سائنس کے بارے میں یہ ڈھکوسلا پیش کیا جاتا ہے کہ سائنس نے عدم اور وجود کے حوالے سے کوئی حتمی شکل تیار کر دی ہے, کوئی باٹم لائن دے دی ہے, کوئی اسٹیبلشڈ فیکٹ بیان کر دیا ہے اور ہر قسم کے سوال کا جواب مل گیا ہے. تو یہ سوائے محض دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. There is not a single unambiguous interpretation of nothingness in the realm of science. In fact, physicists not only differ while interpreting nothingness, but sometimes contradict with each other. یہ حقیقت آپ کے سامنے. اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں. آج کل عدم اور وجود کے حوالے سے ملحدین نے ایک بندے کو چیمپئن بنایا ہوا ہے. نیکسٹ سلائیڈ اس چیز کو بیان کر رہی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر. شیخ صاحب آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب آپ اویلیبل ہیں؟ میرا مائک میوٹ تھا جی. بالکل نظر آ رہی ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. میرا مائک میوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو شیخ صاحب. اچھا, مجھے عدم اور وجود کے اوپر سائنسی اعتبار سے اس کو کھول کھول کر بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ آج کل ملحدین نے نتھنگنیس کی اس تعریف کو جو ڈاکٹر لارنس کراؤس نے اپنی کتاب یونیورس فرام نتھنگ کے اندر پیش کی, ٹھیک ہے, وائی دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ, اپنی کتاب کے اندر جو پیش کی, موجودہ ملحدین نے, دیسی ملحدین نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہوا ہے. اسی لیے میں نے اس سلائیڈ کے اندر چیمپئن آف نتھنگ لکھا ہے. تو یہ نتھنگ سائنٹیفک نتھنگ نہیں ہے, دس نتھنگ از لٹرلی نتھنگ. یعنی لارنس کراؤس نے جو نتھنگ کی ڈیفینیشن پیش کی ہے اور توجیہ پیش کی ہے اور اس پر جو پوری کتاب لکھ ماری ہے اور ورقے سیاہ کر دیے ہیں, اس کی حقیقت اور پول میں بھی کھولوں گا. تو جتنے دیسی ملحدین ہیں وہ سارے کے ساری بنیاد بنا اور سارے پروگرامز اور سارا مواد اور کنٹینٹ یہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں. ہم اسی بنیاد کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کراؤس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے, کراؤس نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا پرپز وہ بیان کرتا ہے خود ہی. وہ کہتا ہے یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی کہ ماڈرن سائنس جو ہے وہ بہت انداز کے اندر بڑے مختلف طریقوں سے اس سوال کا جواب دیتی ہے جس میں مذہب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, فلسفے نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. ہم نے وہ جواب تلاش کر لیا. وہ جواب, سوال کیا ہے جی؟ وائی دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ, کہ اگر ہم ہیں اور وجود رکھتے ہیں تو ہم کیوں ہیں اور کیوں نہیں ہے, یعنی عدم کیوں نہیں ہے اور وجود کیوں ہے. Why there is
being or something rather than nothing? ये सवाल था साइंस का. इस सवाल के जवाब देने का दावा कर दिया क्राउस साहब ने. और कौन कह रहे हैं ये मुल्हिदीन कह रहे हैं. मगर हकीकत ये है कि यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग पीडीएफ बुक के पेज 19 के अंदर डॉक्टर साहब खुद इस चीज का इतराफ कर रहे हैं कि मैं जो ये सारी बातें करने जा रहा हूं इस पर मैं स्ट्रेस देता हूं. एंड आई एम कोटिंग डॉक्टर क्राउस. वो क्या कहते हैं, आई स्ट्रेस द वर्ड कुड हियर because we may never have enough empirical information to resolve this question unambiguously. क्राउस कहते हैं कि मैं ये पूरा कुछ करने के बाद ये सारी किताब लिख रहा हूं, सारी बातें कर रहा हूं, मगर याद रखें कि मैं इस चीज पर जोर दे रहा हूं कि हमारे पास अभी भी तजर्बाती मुशाहदाती इंफॉर्मेशन इस हद तक नहीं है कि हम इस सवाल का जवाब मुत्तफिका तौर पर वाज़े तौर पर हासिल कर सकें. अब ये क्राउस साहब अपनी किताब के अंदर कह रहे हैं. और हमारे मुल्हिदीन ने चैंपियन ऑन नथिंग की इस डेफिनेशन और इस अकीदे को अपना ईमान बना लिया हुआ है और क्राउस की मक्खी पर मक्खी मारनी शुरू कर दी और यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब क्राउस साहब ने जो बात कर दी है, हाय 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 हाय, एन ईमान है हमारा इसके ऊपर, साइंस है ये है कि नथिंगनेस से मुराद ये. अब क्राउस साहब अपने अकीदे के बारे में तो ये कह रहे हैं अपनी किताब के अंदर. इससे पहले कि मैं क्राउस की किताब के अंदर जंप इन करूं और उसने जो डेफिनेशंस की हैं उस पर थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करूं, मैं क्राउस की जो लिटरेचर से, जुबान से, अल्फाज से की जाने वाली बददयांती और जिम्नास्टिक है और खिलवाड़ है और ड्रामेबाजी है, माजरत के साथ अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बोल्ड, जो इन्होंने ड्रामेबाजी अल्फाज के साथ किया है उसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि नथिंग के साथ जो इस बंदे ने किया है वो इसने और भी कुछ चीजों के साथ किया है. क्यों किया है उसकी वजह बहुत वाज़ेह है. क्योंकि बाज लोग अब बेसिकली प्री डिटरमिन माइंड के साथ पहले सोचे हुए समझे प्लान के तहत चीजों का मुताला करते हैं. अब यही इल्जाम मजहबी तबके की तरफ होता है, थियस्टिक अप्रोच रखने वालों की तरफ होता है कि वो पहले से सोच करके खुदा साबित करना है, वो इस किस्म की बातें करते हैं. मगर हकीकत यह है कि क्राउस ने जो हरकतें की हैं वो बता रही हैं कि इसने अपनी किताब को और अपनी तहकीक को इस बुनियाद पर तश्कील दिया है कि गोया कल को कोई मजहब वाला इस पर एतराज करने या सवाल करने की कोशिश करे तो ये किस तरीके से बच सकता है. और ये किसी भी अनबायस्ड, ऑनेस्ट और सिंसियर टूवर्ड्स फिजिक्स एंड साइंसदान का ये रवैया नहीं हो सकता. तो क्राउस क्या कहता है? क्राउस की जिम्नास्टिक देखें, इसकी किताब यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग पीडीएफ का पेज 146 के ऊपर जो वाई के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि साइंस का आपको पता है हाउ एंड व्हाट के साथ वो डील करती है मगर वाई के साथ वो डील नहीं करती. और स्टीफन हॉकिंग का हवाला भी मैंने एक डिबेट के अंदर पेश किया था द ग्रैंड डिजाइन से, जिसमें वो खुले अल्फाज के अंदर कहता है, गालबन पेज 136 के ऊपर, 136 पेज के ऊपर द ग्रैंड डिजाइन पीडीएफ बुक के अंदर वो कहता है कि हमारे से वाई के सवालात पूछे जाते हैं, यहीं से वो खुदा के वजूद को साबित करते हैं. खैर बहरहाल अभी मेरा मौजू खुदा के वजूद नहीं है, अभी मेरा मौजू है कि फिलोसफी एंड साइंस के हवाले से नथिंगनेस के ऊपर क्या बददयांती की गई है और सोशल मीडिया के ऊपर मुल्हिदीन किस तरीके से इस चीज से फायदा उठाते हैं. क्राउस की जिम्नास्टिक क्या है जी? क्राउस की जिम्नास्टिक आपकी स्क्रीन के ऊपर. क्राउस कहता है इन साइंस वी हैव टू बी पर्टिकुलरली कॉशियस अबाउट व्हाई क्वेश्चंस. वो कहता है मेरे मुल्हिदीन दोस्तों और मेरे मुल्हिदीनों जिन्होंने जाकर उर्दू के अंदर बात करनी है और देसी अवाम को और हिंदी और उर्दू अवाम को बहकाना है, याद रखो जब तुमसे क्यों के सवालात पूछे जाएं तो क्यों को वाई को हाउ के अंदर चेंज कर लो, क्यों को कैसे के अंदर कन्वर्ट कर लो. वो कहता है व्हेन वी आस्क व्हाई वी यूजुअली मीन हाउ, सो आई एम गोइंग टू अज्यूम व्हाट दिस क्वेश्चन रियली मीन्स टू आस्क इज हाउ इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग. मैं सवाल करता हूं अपने मुल्हिदीन दोस्तों से कि व्हाई कैसे हाउ बन गया, व्हाई इज व्हाई. आप व्हाई को हाउ नहीं कर सकते, हाउ इज समथिंग एल्स. पूरी की पूरी साइंस हाउ पर खड़ी है. अगर हर वाई को हाउ करना है तो वो सवालात जो वाई की जगह पर रखे जाने हैं वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? तो व्हेन वी आस्क समथिंग एंड व्हेन वी से
why there is something rather than nothing and why we really exist at the beginning, at very first. हम वजूद ही क्यों रखते हैं? तो इससे मुराद क्यों ही होता है, इससे मुराद हाउ नहीं होता. अब ये बात मैंने इसलिए की है ताकि क्राउस की लिटरेचर के साथ, लुगत के साथ जो बदयांती है वो आपको पता चल सके कि किस तरीके से ये लफ्जों के साथ जिम्नास्टिक करता है और खेलता है. यही इसने नथिंग के साथ किया. अब मैं बकायदा तौर पर क्राउस की जो नथिंग है उसके ऊपर आने लगा हूं. अगली स्लाइड जब आपकी स्क्रीन पर आई तो आपको नजर आता है क्राउस नथिंगनेस. क्राउस का अदम क्या है, पहले ये समझ लें. क्राउस का नथिंग क्या है. उससे पहले याद रखें कि एक फिलोसॉफिकल नुक्ता पेज 149 के ऊपर यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के अंदर इसने उठाया कि हम ऐसी चीज को नथिंग नहीं कहते जिसके अंदर बिलकुवा पोटेंशियली एग्जिस्टेंस का ऑप्शन मौजूद हो, या एक्सेप्शन मौजूद हो, या पॉसिबिलिटी मौजूद हो. तो कोई चीज जो पोटेंशियली पॉसिबल हो सकती है वो नथिंगनेस नहीं होगी. मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर कायनात का वजूद इस वक्त है तो ये बजाते खुद साबित कर रहा है कि ये नथिंगनेस से नहीं आई, या वो नथिंगनेस नहीं है जिसको फिलॉसफी के अंदर या थीस्टिक अप्रोच के अंदर नथिंगनेस कहा जाता है. तो वो फिर साइंटिफिक नथिंगनेस की बुनियाद रखता है. ये वो जगह है जहां से वो बुनियाद रखता है साइंटिफिक नथिंगनेस की. मगर मजे की बात यह है कि मुल्हिदीन इसकी ये बात तो बड़े शौक से पेश करते हैं कि उसने बड़ा शानदार एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पेश किया है कि हम जिसको फलसफे की जुबान के अंदर कहते हैं, अरबिक फिलोसफी के अंदर मा यकून का एतबार. मा यकून, मिसाल के तौर पर मां के पेट के अंदर अभी बच्चा बना नहीं होता, पहले 2-3 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरते हैं, हम कहना शुरू कर देते हैं कि इस मां के पेट के अंदर बच्चा है, एक इंसान है, उसका नाम भी सोच लेते हैं, उससे ताल्लुकात भी व्यवस्था हो जाते हैं, उसके लिए कपड़े भी खरीदना शुरू कर देते हैं, उसके लिए दीगर लवाजमात भी करना शुरू कर देते हैं, अपनी खुराक को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं, कि खुराक को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हम मा यकून का एतबार कर रहे होते हैं कि जो चीज पोटेंशियली अवेलेबल होगी, इसको कहते हैं फलसफे की जुबान के अंदर कि किसी चीज का बिलकुवा मौजूद होने की सलाहियत रखना. अब वो बिलफेल होगी या नहीं ये बात की बात है, यानी किसी चीज के वजूद का इम्कान, उसको पोटेंशियली पॉसिबल कहते हैं. तो क्राउस ने जब ये बात की तो हमारे कई सोशल मीडिया के मुल्हिदीन बड़े चहके कहते हैं वाह जी वाह, बड़ी फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट उसने पेश किया है कि वो चीज जो पोटेंशियली पॉसिबल हो उसकी एग्जिस्टेंस वो नथिंग होगी नहीं. मगर क्राउस ने खुद अपने आर्ग्यूमेंट के साथ वो किया जो मैंने करना था, वो क्राउस साहब ने खुद कर दिया. क्राउस पेज 149 के ऊपर कहते हैं कि इन एनी केस इफ पोटेंशियल टू एग्जिस्ट वर द सेम एज एग्जिस्टेंस then I am certain that by now masturbation would be as hot button a legal issue as abortion now is. क्राउस कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि जो चीज अपने वजूद का इम्कान रखती है वो वजूद ही रखती है, ऐसा ही माना जाएगा, तो फिर मुश्तजनी करना, मास्टरबेट करना वैसा ही जुर्म माना जाएगा जैसे मां के पेट से अबॉर्शन करवाना, या वैसे ही लीगल इश्यूज का फेस करना पड़ेगा मुश्तजनी के हवाले से. तो क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब यह है कि वजूद से पहले अदम होता है और अदम कोई वजूद नहीं रखता बाय डेफिनेशन. अगर हम ये कहें कि कोई चीज अपने वजूद से पहले वजूद रखती है तो इससे बड़ी जहालत कोई नहीं है. यानी ये ऐसी इलॉजिकल इररेशनल आर्गुमेंट होगा कि कोई चीज अपने वजूद से पहले वजूद रखती हो. ठीक है, इन एनी सेंस. अच्छा, अब दूसरी चीज जो मैं इस हवाले से रखना चाहता हूं कि मैं क्राउस की नथिंगनेस के अंदर जाऊं, वो ये चीज भी है कि क्राउस ने खुद अपनी इस थ्योरी के बारे में क्या कहा है. मुल्हिदीन क्राउस की नथिंगनेस को अकीदे के तौर पर पेश कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि मुल्हिदीन के रूहानी अब्बा हुजूर रिचर्ड डॉकिंस साहब ने इनकी किताब का आफ्टरवर्ड लिख दिया, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग का. अब रिचर्ड डॉकिंस साहब अगर पत्थर के ऊपर सिग्नेचर कर दें तो यह मान लिया जाएगा कि जनाब ये पत्थर भी जो है ना, ये भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से होकर गुजरा है, ये रिचर्ड डॉकिंस साहब के साइन हो गए.
ठीक है जी. अब रिचर्ड डॉकिंस साहब जो हैं वो किसी गधे से भी कलाम कर देंगे तो माना जाएगा कि जनाब ये भी फिजिसिस्ट है और कॉस्मोलॉजिस्ट है. मतलब इस तरह की सोच रखी जाती है ना आमतौर पर कि जी ये रिचर्ड डॉकिंस अगर किसी गधे से बात कर रहा है या किसी गधे से आर्गुमेंट कर रहा है तो वो पढ़ा लिखा बंदा होगा भाई. तो की पता है ये रूहानी गल्ला ने. हाँ जी, ये मुल्हिदीन की रूहानियत है. They both are equal. They both are equal. एग्जैक्टली. तो हम बेसिकली बीच में फंसे हुए हैं. हम बीच में फंसे हुए हैं. एनीवेज आगे चलते हैं. तो क्राउस ने अपने इस अकीदे के बारे में क्या कहा, ये मैं क्यों स्ट्रेस देकर बयान कर रहा हूं, ताकि हमारे मुल्हिदीन जो उर्दू और हिंदी समझते हैं उनको ये पता चले कि यार आपको जो फीड किया जा रहा है अकीदा बनाकर, वो खुद बंदा क्या कह रहा है कि वो उसका अकीदा है भी है कि नहीं. लॉरेंस क्राउस साहब जो हैं एक इंटरव्यू देते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया हुआ है. 13 जनवरी 2012 को एक मैगजीन है टॉक ऑफ द नेशन रेडियो, वो बाद में लिखत में भी आ गया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है. लॉरेंस क्राउस का इंटरव्यू होता है टॉक ऑफ द नेशन के ऊपर 13 जनवरी 2012 को 21 मिनट और 33 सेकंड का. उसमें एक जुमला कहता है, क्या कहता है, वी आर एट द लिमिट्स ऑफ आवर नॉलेज एंड आई गेस दैट्स समथिंग आई वांट टू स्ट्रेस फॉर पीपल हु थिंक यू नो. वो कहता है हम अपने इल्म की हुदूद पर पहुंचे हुए हैं, हमारा इल्म महदूद है. और वो कहता है मैं ये कहना चाहता हूं जोर देकर उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं, यू नो, कि वो जानते हैं, आई डोंट, जो कहते हैं कि तुम जानते हो क्राउस, आई डोंट वांट टू क्लेम दैट वी नो द यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग. क्राउस कहता है मैं ये क्लेम ही नहीं कर रहा कि मैं ये जानता हूं हतमी तौर कि कायनात अदम से आई है, नथिंग से आई है. मैंने ये क्लेम नहीं किया, मैंने ये प्रेजेंट किया है एक थ्योरी के तौर पर. इन अ सेंस वो ये चीज कह रहा है. तो जब जिस बंदे ने ये कॉइन की, इनके बकौल अभी मैं ये राज़ करूंगा कि नथिंगनेस किसने कॉइन किया है किसने नहीं. ठीक है जी. शेख साहब आपको टाइम नजर आ रहा है, कितना टाइम हो गया? जी टाइम हमारा इस वक्त 32.5 मिनट हो गए. ओहो, अच्छा. मैं 30 से 40 मिनट के अंदर खत्म करने के चक्कर में था, मगर मुझे लग रहा है शेख साहब इज इट इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है चीजें? वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैरी ऑन प्लीज. ठीक हो गया, चलो मैं ठीक हो गया, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, आप ले जाएं इसे. ठीक हो गया इंशाल्लाह, ठीक हो गया. मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम चैप्टर्स के अंदर और क्लिप्स के अंदर भी इंशाल्लाह शाया कर देंगे ताकि लोगों के लिए दिक्कत ना हो इंशाल्लाह. ठीक हो गया. अच्छा, अब क्राउस जो है वो इस अकीदे को डिनाई कर रहा है और ये उसको लगे हैं जफियां डालकर अकीदे. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नून लीग का पनामा का केस, वो तो मिठाइयां बांटना शुरू हो गए. ओ भाई पहला पढ़ते लो कि कानून है क्या, मिठाइयां पहले, तो अकीदा पहले बन गया है क्योंकि ज़हन पहले तौर पर तैयार किया हुआ है. बहरहाल खैर आगे चलते हैं. क्राउस की नथिंगनेस है क्या, अपनी पूरी किताब के अंदर और जितनी वीडियोस क्राउस की देखी जाएं, उसने नथिंग को दो मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है. दो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर उसने डिवाइड किया है, बाकी सब डिटेल है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन है, बाकी सब एलैबोरेशन है. जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो दो किस्मों के अंदर तकसीम होता है. तो क्राउस की जो नथिंगनेस है जिसको वो क्वांटम वैक्यूम कहता है, वो दो चीजों पर है. एक ये कि वो कहता है नथिंग इज अनस्टेबल, नथिंग इज अनस्टेबल, यानी अदम जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उसमें इज़्तिराब है. अब वो इज़्तिराब और बेचैनी कैसी है, उसका नाम उसने रखा है क्वांटम फ्लक्चुएशंस. इसने नहीं रखा, बेसिकली ये क्वांटम फिजिक्स ने टर्म कॉइन की हुई है, तो इसकी तरफ निस्बत हम नहीं करेंगे. ठीक है ना. इसकी हैसियत इसमें क्या है वो मैं आगे इंशाल्लाह पेश करने लगा हूं. तो उसको नथिंग इज अनस्टेबल को वो कहता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस. तो फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स की जुबान में क्वांटम फ्लक्चुएशंस उन हरकत को कहते हैं, उन उतार चढ़ाव को कहते हैं, नशेबो फराज को कहते हैं जो क्वांटम realm के अंदर पेश आती हैं. डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होती, वो एम्पिरिकल नहीं होती, उनका एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, मगर उनका इफेक्ट देखा जा सकता है जो कि एक्सपेरिमेंट के साथ पॉसिबल है. इफेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर वो नहीं आती. तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस नंबर एक. अच्छा, नंबर दो वो कहते हैं नथिंग इज समथिंग.
अब ये बड़ी बोंगी मारी है क्राउस साहब ने, मगर हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अब नथिंग इज समथिंग, किसी लिटरेचर की जुबान के अंदर नथिंग इज समथिंग इज अ वेग, इज जो है ना वो मुबहम, ठीक है ना, एक अजीबो गरीब किस्म की इन्होंने एम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट है, मगर कोई बात नहीं, इसको टिपिकली साइंटिफिक बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं जिनको ये साइंटिफिक कहते हैं, राइट। अच्छा, वो कहते हैं नथिंग इज समथिंग, वो समथिंग है क्या? उनका नाम है रखा वर्चुअल पार्टिकल्स, कि कुछ पार्टिकल्स जो रियल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी, और कुछ होते हैं जिनको बाज़ औक़ात एंटी पार्टिकल्स, वर्चुअल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के तौर पर पेश किया जाता है। उनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है, जो अदम के अंदर भी मौजूद होते हैं, यानी अदम इन अ साइंटिफिक सेंस, मैंने आपको पहले बताया। तो साइंस की हुदूद के अंदर भी नथिंगनेस की एक नहीं है, ठीक है। तो ये क्राउस ने दो तरीके से नथिंगनेस को बयान किया कि नथिंग इज अनस्टेबल, नथिंग इज समथिंग। इस सारी डेफिनेशन के ऊपर अब मैं तबसरा करने लगा हूं, ठीक है। मगर इससे पहले कि मैं नथिंगनेस के ऊपर मुकम्मल तबसरा करूं, मैं आपके सामने ये चीज बयान करूंगा कि क्राउस जिसका सेहरा अपने सर ले रहा है, और रिचर्ड डॉकिंस जो इसमें पेश है और एक नुमायां किरदार अदा कर रहा है कि किसी तरीके से सारे का सारा मलबा जो है वो क्राउस के हाथ डाल दिया जाए, और मुल्हिदीन मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका राज फाश कर दिया है जॉन हॉर्गन ने। जॉन हॉर्गन जो है ये एक साइंस जर्नलिस्ट है और कई किताबों का मुसन्निफ भी है। इसने क्राउस पर एतराजात पेश किए हैं कि अदम, साइंटिफिक नथिंगनेस के ऊपर जो क्राउस अपनी मोहर लगाने की कोशिश कर रहा है, ये क्राउस से कई साल पहले, कई दहाइयों पहले ये चीजें क्वाइन भी की जा चुकी हैं और इनके ऊपर बात भी की जा चुकी है। और ये बेसिकली चू चू का मरब्बा तैयार किया है क्राउस साहब ने, ये जिक्र करते हैं जॉन हॉर्गन। तो मैं आप दोस्तों के लिए पढ़ूंगा तवज्जो के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस पूरे आर्टिकल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ये आर्टिकल लिखा गया 23 अप्रैल 2012 में साइंटिफिक अमेरिकन पर्चे के अंदर, मैगजीन के अंदर। तो ये जॉन हॉर्गन साइंस के जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, ये कोई नून लीग का खरीदा हुआ या पीटीआई का खरीदा हुआ सहाफी नहीं है, ठीक है ना जी। ये साइंसदान, साइंस की बुनियाद रखने वाला, यानी साइंस की बुनियाद पर कॉलम लिखने वाला, तहकीक लिखने वाला जॉन हॉर्गन। और इस बंदे ने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जिनका आगे जाके जिक्र होगा, ठीक है ना। तो ये आम बंदा नहीं है। अच्छा जी, इसने जो आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल की हेडिंग क्या लिखी उसने? साइंस विल नेवर एक्सप्लेन व्हाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। लो, अब ये भी एक राय है। वो कहता है ये जो कहा जाता है ना कि साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम अदम से वजूद में आए हैं और क्यों आ सकते हैं हम खुद ब खुद, वो कहता है साइंस विल नेवर एक्सप्लेन। अब वो तबसरा करेगा क्राउस की नथिंगनेस के ऊपर, और क्राउस से पहले जिन लोगों ने ये तहकीक पेश कर दी थी, इसलिए चीज समझे। वो कहता है decades ago physicists such as the legendary John Wheeler proposed that according to the probabilistic dictates of quantum field theory, even an apparently perfect vacuum seethes with particles and antiparticles popping into and out of existence. वो कहते हैं कि कई दिहाइयां पहले ये जो इम्कानी हुक्म है, इम्कानी हुक्म से मुराद क्या है कि क्वांटम फील्ड जो है, क्वांटम फील्ड, इसके बारे में एक थ्योरी पेश की जाती है कि वहां कुछ पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स खुद ब खुद पॉप अप होते हैं और विद अ वेरी फ्लीट ऑफ टाइम, विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, वो बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से अंधेरे के अंदर जुगनू टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, इससे भी कम, कई गुना कम जो है ना वो यानी ऑब्जर्वेशन के अंदर वो चीज नहीं आती, इतनी तेजी से बनते और बिगड़ते हैं। इट्स लाइक बबल्स, यानी वो क्वांटम वैक्यूम के अंदर एक समुंदर है बड़ा, उस समुंदर के अंदर सैकड़ों, हजारों, करोड़ों बबल्स पॉप अप होते हैं जिनका आज तक पता ही नहीं चला कि वो कहां से आए, कहां गए हैं। अब वो कहते हैं कि ये थ्योरी दहाइयों पहले कई माहिर तबियत दान जो हैं, फिजिसिस्ट जो हैं, उन्होंने पेश कर दी थी, जिनमें से एक का नाम उसने मेंशन किया, जॉन व्हीलर। अच्छा, एक का नाम उसने किया, फिर उसने हवाला दिया कि 1990 के अंदर रूस का एक फिजिसिस्ट था, एंड्रे लिंडे।
उसने भी ये बात की थी कि हमारी यूनिवर्स जो है ये क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से उभर कर सामने आ सकती है। सेम डिटो वही थ्योरी जो क्राउस ने अपने हाथ खाते लगा ली, और क्राउस कहता है जी मैंने सवाल जवाब ढूंढ लिया जी। तो मैं मुल्हिदीन को कहता हूं कि क्राउस सिर्फ इसलिए कि वो मुल्हिद है और आपने उस पर ईमान ले आए हैं, उसको अपना रसूल और नबी बना लिया हुआ है, और उसके इल्हाम पर आपने ईमान ले आए हैं, व्हाट वी कॉल एज ब्लाइंड फेथ, जो आपने रख लिया है, ये तो उससे पहले आ चुका हुआ है। अब वो पोल खोलने लगा है, यहां तक उसने पोल खोला कि क्राउस ने जो चीज पेश की है वो कई दहाइयों पहले मौजूद थी। ये को उसने नई चीज नहीं पेश की, ये चूंचू का मुरब्बा उसने किसी की तहकीक आगे पेश कर दिया। ये मेरा अल्फाज नहीं है चूंचू का मुरब्बा, ये उसने कहा है, लिटरली ही मेंशन्ड चूंचू का मुरब्बा देयर, नॉट ऑब्वियसली नॉट चूंचू का मुरब्बा, बट समथिंग इन इंग्लिश, सो यू विल सी इट, आई विल रीड फॉर यू। अच्छा, वो क्या कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में, मैं पढ़ने लगा हूं और ये आपको लिंक मिल जाएगा। वो कहते हैं डॉकिंस इज कंपेयरिंग द मोस्ट, अच्छा डॉकिंस ने क्या किया था, ये जो बयान करने लगा उसका बैकग्राउंड ले। डॉकिंस जो है, मेरे मुंह से डोंकी निकलने लगता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। डॉकिंस जो है उसने क्राउस की किताब का जो आफ्टरवर्ड लिखा है उसमें क्राउस की थ्योरी को उसने डार्विनियन जो एवोल्यूशन है उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। दो, उसने कहा कि डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो दुनिया के अंदर जिंदगी का आगाज एवोल्यूशन को माना है ना, क्या खबर के कॉस्मोस के अंदर भी कोई एवोल्यूशन उसी पैमाने के ऊपर हुआ हो। यानी उसने डार्विनियन एवोल्यूशन को क्राउस की नथिंगनेस की जो एवोल्यूशन है कॉस्मोस की, उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब इस चीज के ऊपर जॉन हर्गन को चढ़ वट गया, क्योंकि वो साइंस का सहाफी है। उसने फिर इनको जो छिल्ला है वो आपके सामने मैं पढ़ता हूं। वो कहता है डॉकिंस is comparing the most enduring profound scientific treatise, यानी डार्विनियन एवोल्यूशन, ये ब्रैकेट में मैंने ऐड किया है, उधर नहीं है कॉलम के अंदर, ये मैंने ऐड किया, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में येलो कर दिया ताकि कोई ये ना कहे कि ओरिजिनल तो डार्विन। वो क्या कह रहा है, डॉकिंस ने कंपेयर किया है इतनी बेहतरीन तरीके से पेश की गई एक साइंसी हकीकत को जिसको हम डार्विन का एवोल्यूशन कहते हैं, इन अ हिस्ट्री टू अ पॉप साइंस बुक। उसने कहा एक मजाक का खेज किस्म की साइंस की किताब के साथ डॉकिंस ने कंपेयर कर दिया है। ये मैंने क्यों पॉइंट लिखा है यहां पर डार्विनियन एवोल्यूशन का, मकसद बयान करने का यह है कि जॉन हॉर्गन ने एवोल्यूशन, जो डार्विनियन एवोल्यूशन है उसकी तौसीफ बयान की है, उसको एडमायर किया है। और मुल्हिदीन को पता है कि कोई मजहबी बंदा, कोई बिलीवर जो है वो डार्विनियन एवोल्यूशन की बजाय क्रिएशन को तरजीह देता है और उसकी तारीफ बयान करता है। ठीक है जी, कोई बिलीवर डार्विनियन एवोल्यूशन इस तरीके से प्रेज और एडमायर नहीं करेगा, ठीक है ना, जो जानता हो, पढ़ने वाला हो। कहता है आपने किसके साथ कंपेयर कर दिया। अब वो आगे जो जुमला उसने बोला, कहता है बुक दैट रिसाइकल्स अ बंच ऑफ स्टेल आइडियाज। वो कहता है वो किताब जिसने उधर से कूड़ा इकट्ठा किया, कबाड़ इकट्ठा किया और बासी किस्म के जो ख्यालात हैं फिजिक्स के और कॉस्मोलॉजीज के, उनको इकट्ठा कर लिया। और उसने अब जो है ना वो डार्विन के ऊपर, अपना डॉकिंस के ऊपर जो है ना वो तबसरा किया। कहता है दिस अब्सर्ड हाइपरबोल, कहता है ये पागलों जैसा मुबालगा जो है, ये अहमकाना मुबालगा जो डॉकिंस ने किया है, says less about the merits of Krauss derivative book than it does about the judgment impairing intensity of Dawkins' hatred of religion। इसको आसान लफ्ज़ों में समझे, वो ये कहता है कि डॉकिंस ने जो ये बेवकूफी और मुबालगा किया है कि डार्विनियन एवोल्यूशन को कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है, कहता है ये इतनी बड़ी हमाकत और इसने मुबालगा किया है कि मुझे क्राउस की किताब, जो बेहुदा किस्म की किताब है, वो भूल गई है। मुझे डॉकिंस की जो मजहब से नफरत है उसके ऊपर ताज्जुब आ रहा है कि इसने मजहब की नफरत के अंदर क्राउस की जो पॉपअप की हुई और बासी इकट्ठी की हुई थ्योरी है उसको डार्विनियन एवोल्यूशन के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे मेरा पेश करने का मकसद क्या था, मेरा पेश करने का जो मकसद था इसको, वो ये था कि क्राउस ने जो नथिंगनेस पेश की है, जिसको मुल्हिदीन आमतौर पर कहते हैं कि जनाब हमने, जनाब क्या कहते हैं, अच्छा जी, वो कहते हैं जी हमने जनाब क्राउस ने ऐसी चीज पेश कर दिया जिसके ऊपर हमारा अकीदा है। तो जनाब वो क्राउस ने तो पेश ही नहीं की, क्राउस से पहले वो चीजें पेश हो चुकी हुई हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि क्यों ना मैं थोड़ा सा तारीख के झरनों के अंदर जाऊं। जी शेख साहब, मेरी आवाज आ रही है ना जी आपको?
جی بالکل آ رہی جی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب میں دکھانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو, بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے, کہ اس سائنسدان نے تو یہ کہا ہے نا کہ کئی دہائیاں پہلے لوگ نتھنگنیس کو سم تھنگ کہہ رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ نتھنگنیس کے اندر بھی کوئی وجود ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی کوئی حالت ہوتی ہے, کوئی شے ہوتی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے 5ویں اور 6ٹھی صدی کے اندر مسلم صوفیوں جو کہ فلسفے سے متاثر تھے, مسلم صوفی, مسلمانوں کے جو صوفی تھے, ان لوگوں نے کس طریقے سے نتھنگنیس کے اوپر بات کی ہے کہ نتھنگنیس کو وہ شے مانتے تھے. لیں اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ حقیقت بھی کھل سکے. اور میں جو بندہ پیش کرنے لگا نا شیخ صاحب, ہمارے پھر مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو بندے نے وہ عقیدہ پیش کیا ہے جو ملحدین کا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کس نے پیش کیا یہ ذرا میں آپ کی اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں, دیکھیں. اچھا جی, یہ آپ کے سامنے ابن تیمیہ کی مجموعہ الفتاوی ہے. ابن تیمیہ جو کہ 8ویں صدی کے متوفی ہیں, مجموعہ الفتاوی کی دوسری جلد ہے, پیج 469. میں نے کہا تھا میں مذہب کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا, فلسفے کے اوپر اور سائنس کے اوپر گفتگو کروں گا, تو یہ فلسفے کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, ٹھیک ہے جی. مجموعہ الفتاوی میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں میں فلاسفہ نے اور مسلم صوفیاء نے ٹھوکر کھائی ہے, ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان المعدوم شیء ثابت فی العدم, کہ معدوم بھی شے ہوتی ہے, ثابت فی العدم, وہ عدم میں ثابت ہوتا ہے. یعنی معدوم ایک سم تھنگ ہے جو کہ نتھنگنیس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہ ابن تیمیہ نے 8ویں صدی کے اندر 6ٹھی اور 5ویں صدی میں موجود فلاسفہ کے حوالے سے پیش کیا ہے. یعنی کراؤس کہاں 21ویں صدی کا بندہ جو بات کر رہا ہے جس کی طرف بولے, اور یہ کہاں 6ٹھی 7ویں صدی کے اندر بات ہو رہی ہے کہ معدوم شے ہوتی ہے. اچھا جی, اگلا حوالہ لے لیں کہ یہ پہلے تو وجود تھا. اب یہ کس نے کہا ہوا بات, وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں. ادھر وہ کہتے ہیں, یہی پیج ہے بیسیکلی آگے چل کر, وہ کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ, یہ قول, آنی قول من یقول, قول من یقول, میری مراد, ابن تیمیہ کہتے ہیں میری مراد یہ قول کہ ان المعدوم شیء ثابت فی نفسہ, کہ معدوم ایک چیز ہوتی ہے جو اپنا وجود مستقل رکھتی ہے. معدوم, عدم, is something جو اپنا رکھتی ہے خارجن عن علم اللہ تعالی, اللہ کے علم سے باہر. اب یہ بہت بڑی چیز ہے, دیکھیں یاد رکھیں, 3 قسم کے وجود یہاں پر ثابت ہو گئے فلسفے کی بنیاد پر. ایک وہ وجود جو ارادے کے بعد عمل میں آ جائے, یعنی میں, آپ, یہ دنیا, آپ کے ارد گرد وجود رکھنے والی چیزیں, یہ سم تھنگ ہیں, یہ وجود رکھتی ہیں. دوسری وہ چیز ہے جس کو سائنس بھی نتھنگنیس میں سم تھنگ کہہ رہی ہے اور فلسفے میں بھی سم تھنگنیس نتھنگنیس کہہ رہے ہیں. ایک وہ وجود ہے, کون سا وجود, جو اس وجود سے پہلے کی حالت ہے. اور تیسرا وہ وجود ہے جو انفارمیشن میں, لوگوس میں, سائنٹیفک ٹرم کے اندر لوگوس اور انفارمیشن کے اندر موجود ہے, جس میں سائنٹیفک نتھنگنیس کی جو تیسری قسم میں نے بیان کی تھی کہ کوانٹم ویکیوم کیا ہوتا ہے. کوانٹم ویکیوم بیسیکلی انفارمیشن اینڈ ورچوئل پارٹیکلز پر بیس کرتا ہے. تو وہ انفارمیشن کیا ہوتا ہے, انفارمیشن کہتے ہیں نالج کو, علم کو. فلسفے میں یہاں جو تھیولوجسٹ ہیں وہ بھی یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ 3 قسم کے وجود ہوتے ہیں. ایک وہ وجود جو حقیقت میں, ایک وہ وجود جو عدم میں, اور ایک وہ وجود جو علم کی شکل کے اندر موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے علم کے اندر ایک نقشہ موجود ہے کہ میں ایسی گاڑی بناؤں گا, وہ میرے علم کے اندر ایک وجود رکھتا ہے. تو اللہ کے علم میں کسی چیز کا ہونا بھی ایک وجود رکھتا ہے. یہ فلسفے کے اندر بحث ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, جس کو سائنٹیفک نتھنگنیس کے اندر ہم انفارمیشن اور لوگوس کے نام سے یاد رکھتے ہیں. اب ابن تیمیہ کا کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کن کا تھا. ابن تیمیہ شیخ صاحب آخری لائن کے اندر کہتے ہیں یہ عقیدہ اسلام میں بدعت کے طور پر ایجاد کیا گیا, باطل عقیدہ ہے. ابن عربی, آئے ہائے ہائے ہائے, ابن عربی نے نہ ختم نبوت چ سانو سا لین دیتا ہے, نہ سانو اے الہاد چ سا لین دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابن عربی صاحب یہاں آ گئے اور ابن عربی صاحب نے کہا کہ عدم بھی ایک وجود رکھتا ہے اور اللہ کے علم سے خارج میں ایک وجود رکھتا ہے. یعنی ایک انفارمیشن, then there is nothingness, then from nothingness there is something, popped out something. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تین طریقے. تو ابن عربی عقیدہ رکھتا ہے. کس جگہ پر رکھتا ہے؟ فصوص کے اندر. ابن عربی کی کتاب ہے الفصوص الحکم,
उसका हवाला इब्न तैमिया ने दिया है। आए एक और चीज ले लें, ये मैं बयान कर रहा हूं नथिंगनेस की तारीखी हैसियत फलसफे की जुबान। मजमू फतावा वॉल्यूम नंबर 11 पेज 241 के अंदर इब्न तैमिया बयान करते हैं कि अन्ना साहिब, दूसरी लाइन पढ़िएगा, वो अन्ना साहिब फसूस, साहिब फसूस यानी इब्न अरबी, यकूलू कहता है अल मादूम शैउन, के नथिंगनेस भी कोई चीज होती है, व वजूदुल हक की फाजुन अलैहि, और हक का वजूद उससे जायद होता है, यानी अल्लाह की जात है, फिर दूसरा वजूद है मुमकिनुल वजूद, और फिर मादूम एक शय है, फयुफर्रिकु बैनल वजूद व सबूत। तो इन लोगों ने वजूद और सबूत के माबैन फर्क कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये लोग क्या कहते हैं, फ़इन्ना उलाइका क़ालू इन्न रब्ब खलक़ा लिहाज़िहिल अश्याइ साबितति फिल अदम। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अदम में भी कुछ अशिया हैं जिनका रब खालिक है। ठीक है, यानी अदम के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो मखलूक हैं, मगर वो इतनी मादूम है कि उनका मुस्तकिल वजूद नहीं है। और यही तो क्वांटम फील्ड थ्योरी कह रही है। जो क्वांटम फिजिक्स के अंदर, क्वांटम वैक्यूम के अंदर जो वर्चुअल पार्टिकल्स फ्लक्चुएशंस की वजह से पॉप्ड अप होते हैं, वो भी तो मखलूक ही हैं। अब मैं जाकर आगे बयान करूंगा। यार मैं 51 मिनट होने वाले हैं शेख साहब, मैं तो सोच रहा था आज की एपिसोड 1 होगी, और मैं चले 8 मिनट और ले लें, 1 घंटे में कर लें अगर होता तो। जी 1 घंटा करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर कवर करूंगा, मगर मुझे लग रहा है कि मैं इसको मुझे ना 2 कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। जी, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। मैं ये इस हिस्से को कवर करने के बाद, इसका पोल खोलने के बाद, किसकी तारीखी हैसियत क्या है, 2 कमेंट्स के अंदर बताएं कि जिस तफसील के साथ मैं बयान कर रहा हूं ये तफसील वाकई मुफीद है, या मैं अगर इसको थोड़ा मुख्तसरन बयान करूं तो आपका गुजारा चल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आमिर, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये एक वी कैन से इट्स हिस्ट्री इज रिटन, बिलीव मी, बहुत लंबी चीज है ये, बहुत खूबसूरत चीज है। आप इसको लेके चलें, ये आने वाले और आजकल के जो नौजवान नस्ल है उसके लिए बहुत मुफीद है ये चीज। ये इल्मी बात हो रही है, इसमें कोई ऐसी चीज हम बहस नहीं कर रहे किसी में। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, यही चीज जो है ये लोग पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया फलसफे के हवाले से, तारीख में से हवाला। एक और हवाला लेते हैं, उसके बाद मैं बैक टू द साइंटिफिक जो रियाल्म है उसमें हम आ जाते हैं। इब्न तैमिया का मजमू अल फतावा जिल्द 18 सफ़ा 370। इब्न तैमिया कहते हैं, व अहलुल इल्म कद अअज़मुन नकबत अला मन यकूल, अहले इल्म ने बड़ी जोर की चोट लगाई है ऐसे शख्स के ऊपर जो ये कहता है कि अल मादूम शैउन साबितुन फिल खारिज, कि मादूम भी कोई शय है जिसका मुस्तकिल वजूद है। व इन कान लिहाउलाई शबहतुन अक़लियतन लिकौनिहिम, अगरचे उसके कौन, उनके कौन के एतबार से अकली तौर पर शुबहात मौजूद हैं। ज़न्नु, वो गुमान ये करते हैं, उनको शक पड़ता है कि अन्ना तमीज़हु फिल इल्मी वल इरादती यक़्तज़ी तमीज़हु फिल खारिज। वो ये कहते हैं कि इल्म और इरादा में फ़र्क करना किसी चीज़ के वजूद के एतबार से खारिज में भी असरअंदाज होता है। फ़इन्नहुम अख़्तऊ फ़ी ज़ालिक, इस चीज़ में वो ख़ता पर हैं। व तहक़ीक़ अल फ़र्क़ बैन सबूतिल इल्मी वल ऐनी, तहक़ीक़ ये है कि सबूत में इल्मी और ऐनी एतबार से फ़र्क है। व अम्मा वजूदुल अशियाई क़ब्ल ख़ल्क़िहा, ये कहना कि चीज़ें अपने वजूद के पहले, साबित होने से पहले तख्लीक में मौजूद थी, फ़हाज़ा आज़मु फ़िल जहली व दलाल, तो ये चीज़ें जहालत और गुमराही के एतबार से बहुत पहुंची हुई हैं, बड़ी हैं। ये मैंने हवालाजात इस हवाले से पेश किए, ये मैंने इस हवाले से हवालाजात पेश किए हैं कि क्राउस कोई पहली मखलूक नहीं आई जिसने ये कह दिया है कि अदम जो है वो भी एक चीज है, दैट नथिंग इज समथिंग एंड नथिंग इज अनस्टेबल एंड ब्ला 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 ब्ला। फलसफे के अंदर 8वीं 6ठी 5वीं सदी के अंदर ये बहसें मौजूद रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं, आपको मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूं जी। अच्छा, जी शेख साहब, स्क्रीन नजर आ रही है? जी 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 आ रही है। अच्छा दोस्तों, ये वो सारा जॉन हॉर्गन की गिरफ्त थी
جو اس نے کراؤس کے اوپر اور ڈاکنز کے اوپر کی نتھنگنس کے حوالے سے, اور اس نے ایک تاریخی پس منظر بیان کیا سائنٹیفک دنیا کے اندر کہ کن کن لوگوں نے پہلے یہ اینٹی پارٹیکلز کی بات کر دی ہے, اینڈ یونیورس فرام نتھنگ, فرام کوانٹم فلکچویشن, پریمورڈیل قسم کی تھیوری وہ ساری پیش کر چکے ہوئے تھے 1990s کے اندر. تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا, یہ تفصیل طلب ہے. یہاں ہم کراؤس کے ایک, یہاں تک میں نے جو چیز بیان کی ہے نا, وہ چیز یہ بیان کی ہے کہ کس طریقے سے کراؤس جو ہے اس کا آرگیومنٹ کوئی نیا نہیں ہے, کوئی نئی ریسرچ نہیں ہے. بیسیکلی یہ باسی چوری کیا ہوا ماجون مرکب چونچوں کا مربع تھیوری ہے جس کو مختلف طریقوں سے اس نے اکٹھا کیا ہے. اب جو ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی, کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, میں اس کو لمبا اس لیے نہیں کرنا چاہتا. ایک تو میں چاہتا ہوں کہ کمنٹس کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو شو ہو جائے گا, میں دکھاؤں, اس طریقے سے مجھے رائے دیں اپنی کہ آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں, کس طریقے سے آپ سیکھ رہے ہیں, کو آپ کے ذہن میں کیوری ہے وہ کریں. یہاں سے جو سلائیڈ شروع ہوئی ہے نا ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ, وہ شروع ہوگی کہ کراؤس نے جو آرگیومنٹس پیش کیے ہیں یونیورس فرام نتھنگنس کے حوالے سے, اس پر سائنسدانوں کی, میں نے پہلے کہا تھا ملحدین کو اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر, نمبر 1 میں نے مومنین کے لیے کہا تھا میں کوئی قرآن کی کوئی حدیث پیش نہیں کروں گا اس گفتگو کے اندر, ٹھیک ہے, جب تک میں فلسفی اور سائنس کو ڈیل کر رہا ہوں. اور دوسرا میں نے کہا تھا ملحدین سے کہ میں کوئی قرآن اور آیت آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا, میں سائنس کے معتبر ترین حوالے پیش کروں گا, ریفرنسز پیش کروں گا, لنکس پیش کروں گا, اوریجنل ٹیکسٹ پیش کروں گا. آپ اس کو چیلنج کریں, میرے استدلال کو, میرے جو آرگومنٹس ہیں ان کو چیلنج کریں, ان پر آپ دیکھیں, گفتگو کریں, آپ کو پتا چل جائے گا. تو یہاں سے ہم اپنا اگلا پروگرام شروع کریں گے کہ کراؤس کا جو آرگیومنٹ ہے وہ آرگیومنٹ کتنا بھونڈا تھا اور کتنا کمزور تھا, یہ اس حوالے سے ہم جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے ایپیسوڈ کے اندر. یہاں ہم کالز کا سیشن بھی رکھتے ہیں, یہاں تک میں پروگرام کو رکھوں گا کہ یہ ایک ڈسکشن کے طور پر ہوا. اچھا, اب میں شیخ صاحب آپ کی رائے بھی لوں گا اور میں لنک پبلک کر دوں گا تاکہ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اگر شامل ہونا چاہیں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں. میں لنک پبلک کر دیتا ہوں جسٹ فار دا سیک آف فارمیلٹی, آئی گیس. جی جی, تھینک یو سو مچ. فارمیلٹی ان سینس کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ اس حوالے سے بورنگ کئی لوگوں کے لیے گفتگو ہو جاتی ہے. اینی ویز, جی شیخ صاحب اوور ٹو یو, آپ کی رائے کیا ہے اپنی گفتگو پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عامر, اگر حقیقت میں پوچھتے ہیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ سٹوری سن کے, ون سائیڈڈ باتیں سن کے, اور سائنس کے حوالے سے اور عقلی طور پہ سوچ کے یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں, جو سوال اٹھائے جاتے ہیں, تو مطلب اس میں نوجوان ہی نہیں, بہت جو لوگ بڑی عمر کے ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں ان ملحدین کی باتیں سن کے. اور ان کے لیے لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی فورم ہونا چاہیے جہاں سے ان کو دلیل کے ساتھ یہ جواب مل سکے. اب جیسا کہ آج کا آپ نے پروگرام یہ دیا ہے, اس میں جہاں پہ آپ نے مغربی دانشوروں کی بات کی ہے, سائنسدانوں کی بات کی ہے, وہیں پر مسلم سکولرز کی بھی بات کی ہے جو فلسفہ کے اندر اپنا مقام رکھتے تھے کہ وہ چیزیں جو آج ایک پیش کی جا رہی ہیں یہ صدیوں پہلے پیش کی جا چکی ہیں. اب چونکہ ملحدین اپنا ایک کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے ایک, میں یہ کہوں گا کہ اسے اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنائیں, اسے اپنے کسی طور پہ بھی اس رنگ میں نہ لیں کہ جی ہم ان کو کسی لحاظ سے مطلب کوئی چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا آرگومنٹ پیش کیا, ایک یہ آرگومنٹ ہے, اس کے اگر کاؤنٹر اسے آپ کر سکتے ہیں علمی طور پہ, لاجیکلی, تو دے آر موسٹ ویلکم, دے شوڈ ڈو دیٹ ون. اور یہ چیز اگر وہ بیٹھ کے کر لیں اکٹھے ایک جگہ پہ ہو کے, تو اٹ ول بی گڈ فار دا پیپل اینڈ گڈ فار دا ینگ جنریشن کہ وہ نئی نسل کو ایک چیز مل جائے گی. ورنہ ہمارا کام جو ہے, ہم اوبیسلی یہ چیز لے کے چلیں گے اور نئی نسل کو ملحدین کے ان غلط پراپوگنڈے سے, ان غلط معلومات سے, بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ ہم باقاعدہ طور پہ دلیل کے ساتھ اس چیز پہ قائل کر سکیں کہ ان کے جو دلائل ہیں, ان کی جو انفارمیشنز ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو غلط, کسی کو برا بلا نہیں, یہ صرف اور صرف ایک علمی آرگومنٹ تھا. جی عامر. عامر آپ کا مائک
بند ہے. جی بہت شکریہ جی. اب میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل ہمارے پاس ٹائم بھی بالکل ختم ہو گیا ہے اور 1 گھنٹہ ہونے کو ہے. میں شیخ صاحب کی بات کے اوپر کہوں گا کہ شیخ صاحب جزاک اللہ، آپ نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جس طرح میں چاہتا تھا. نہیں دوستو، آج کی اس گفتگو میں ہمیں آپ اجازت دیجیے. میں انشاءاللہ اس سلسلے کو پھر جاری اور ساری رکھیں گے، مختلف انداز میں آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کریں گے. اور آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں. انشاءاللہ ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. گفتگو کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں سے ہم نے چھوڑا. انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.